राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। मुंबई के हिंदुजा कॉलेज ऑफ कॉमर्स में KNPCB के वार्षिक दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जो कॉलेज की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कार्यक्रम में शिरकत की और संबोधित करते हुए अपने विचार साझा किए। उन्होंने सनातन धर्म पर चर्चा करते हुए इसे भारत की सभ्यता और संस्कृति की आधारशिला बताया। Milind is very promising and knows when to make the right move. I am talking about those who can give caveats. We have amongst us Honorable Minister Mangal Prabhat Lodha. He is suave, polite, persuasive, and for a man like me, if a person is gifted with three qualities, there is everything to worry because you can't anticipate. So there can be a legitimate caveat. And on top of it, if I am staggering a little while, it's on account of presence of my son-in-law, Kartikeya Vajpayee. But the good relief is that Kartikeya is in the sound company of Soman Satya and therefore will not be in that mode at the moment. But Ashokji, you rightly focused on something which is very fundamental and a contemporaneous need, and something which is part of our civilizational ethos and essence. We must remain well grounded and rooted to Sanatan. And Sanatan has to be part of our culture, our education, because Sanatan stands for inclusivity. Sanatan offers solutions to the most intractable problems the global challenges indicate. I therefore appreciate it, and the endorsement by the Honorable Governor immediately is vindication of your stand. Srimati Harsha Hinduja ji, well, I have got formidable challenge from my wife, but I take some solace. Ashokji is facing equally strong challenge. Sri Paul Abraham, president of the Hinduja Foundation, is a copybook person. He doesn't deviate from what is requirement for the college. While traversing journey of the college, he unfolded future programs. Srimati Chandrakala Joshi, principal Hinduja College. When I looked at the faculty, the very distinguished faculty, I found she has to be little fair to my gender. There were more women in the faculty than men. To be on a right side, I quickly looked at Praful Patel and then extended an invite to her that the faculty will be my guest for visit to the new building of Parliament, and I'll have the occasion to have lunch with them along with Shri Praful Patel and Milind Deoda. Bombay is a place which gave to the country a principle of quid pro quo, and I so recall because I happened to be a politician who went to Parliament in 1989 and was a minister in 1990. But a small explanation. This is not quid pro quo. Distinguished members of the faculty, I must recognize the presence of some whom I know, but everyone present here is a distinguished person. I convey my respects. Shri Neeraj Bajaj, Shri Amarlal Hinduja ji, Dr. Rajesh Joshi, and Shri Rupani. I have had some connect with them in one form or the other. I am particularly here for young boys and girls. And let me tell you, boys and girls, first, there are no backbenchers. There are only backbenches. And let me tell you at the outset, all my life I happened to be a gold medalist, and that was never a good idea. I suffered traumatic obsession. What will happen if I don't come to number one? It was too late in the life I learned heavens have never fallen so far. Why fear them? It is good to be in the first top 10. So never have tension, never have stress. India today is envy of the world for the reason that it has your dividend of the youth. This demographic dividend is your possession, your repository. And undoubtedly, you are the most important stakeholders in democracy and governance. And therefore, I am happy to announce here that the Indian Council of World Affairs, of which I happen to be the president, will have an MOU all with your organization. MOU will fructify in next 2 months, and I'll tell you the reason for the delay. We are awaiting a new director. We are looking for a good person that will give you an exposure to global events, and there will be footprint of global personalities here. Around the time Ashok Hinduja celebrates his 75th birthday, am I right? So does the institution. The milestone is glorious both for the individual and the institution. By the way, it doesn't look that old. But this is an occasion also of stock taking, reflection and planning for way forward. Planning in our times is very challenging because we have challenged times on account of onslaught of disruptive technologies, a kind of industrial revolution. A new era is being heralded virtually every moment. Those of the diplomats who are present here and bring on the table experience and exposure of their own countries will bear me out. And therefore, the Institute will have to focus way forward strategy. It is soothing to note it has quite a mark at the national level. It will be a deemed university, but time for it to set the tone to become a global institute of excellence.
It was indicated a while ago. Learning. I keep on telling boys and girls, शिक्षांत कभी नहीं होती है, दीक्षांत होता है. Learning never stops. Even after you leave the institute, you have to learn every day. And this principle was first put in public domain in pre-Socrates era by a great philosopher, Heraclitus. And Heraclitus, reflecting on change, said, the only constant in life is the change. He buttressed it by an illustration. The same person cannot enter the same river twice, because neither the person is the same nor the river is the same. So boys and girls, keep on learning. And what your computer tells you, keep on self-learning also, because you are your best teacher. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NXT कॉन्क्लेव 2025 को संबोधित करते हुए कहा कि यह समिट नीति केंद्रित है और आने वाले भविष्य को समर्पित है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के भारत पर आज पूरी दुनिया की नजर है। लोग भारत को जानना और समझना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत आज वह देश है जहां लगातार सकारात्मक खबरें बन रही हैं। न्यूज को मैन्युफैक्चर करने की जरूरत नहीं पड़ रही। हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और देश में कुछ न कुछ नया हो रहा है। आपने लीक से हटकर एक नए मॉडल पर काम किया है। मुझे याद है, अगर मैं पहले की समिट और आपकी समिट के संबंध में जो कल से सुन रहा हूं, पहले जो समिट अलग अलग मीडिया हाउस ने की है वो नेता सेंट्रिक रही है। मुझे खुशी है ये नीति सेंट्रिक है। यहाँ नीतियों की चर्चा हो रही है। ज्यादातर इवेंट जो हुए हैं वे बीते हुए कल के आधार पर वर्तमान की नुक्तेचीनी वाले रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि आपका ये समिट आने वाली कल को समर्पित है। मैं देखता था कि पहले जितने भी ऐसे कार्यक्रमों को मैंने दूर से देखा या खुद हुआ गया, वहां विवाद का महत्व ज्यादा था, यहाँ संवाद का महत्व ज्यादा है। और मुझे पक्का विश्वास है। और दूसरा, जितने भी मैं इवेंट्स में गया हूं, एक छोटे से कमरे में होते हैं और अपने अपने लोग होते हैं। यहाँ इतने विशाल समारोह को देखना, और वो भी एक मीडिया हाउस के समारोह को, और जीवन के सभी क्षेत्रों को स्पर्श किए हुए लोग यहाँ होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। हो सकता है यहाँ से और मीडिया वालों को कोई मसाला नहीं मिलेगा, लेकिन देश को भरपूर प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि यहाँ हुए हर व्यक्ति के विचार देश को प्रेरणा देने वाले विचार होंगे। उम्मीद है कि इस ट्रेंड को, इस टेम्पलेट को आने वाले दिनों में दूसरे मीडिया हाउस भी अपने तरीके से और इनोवेटिव बना करके कम से कम उस छोटे कमरे से बाहर निकले। साथियों, 21वीं सदी के भारत पर आज पूरी दुनिया की नजर है। दुनिया भर के लोग भारत आना चाहते हैं, भारत को जानना चाहते हैं। आज भारत दुनिया का वो देश है जहां पॉजिटिव न्यूज लगातार क्रिएट हो रही है। न्यूज मैन्युफैक्चर नहीं करना पड़ रहा है। जहां हर रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, कुछ न कुछ नया हो रहा है। अभी 26 फरवरी को ही प्रयागराज में एकता का महाकुंभ संपन्न हुआ है। पूरी दुनिया हैरान है कि कैसे एक अस्थायी शहर में एक टेम्पररी व्यवस्था, नदी के तट पे करोड़ों लोगों का आना, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके आना और पवित्र स्नान करके भाव से भर जाना। आज दुनिया भारत की ऑर्गेनाइजिंग और इनोवेटिंग स्किल्स देख रही है। हम सेमीकंडक्टर से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक यहीं पर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। दुनिया भारत की इसी सफलता को विस्तार से जानना चाहती है। मैं समझता हूं कि न्यूज एक्स वर्ल्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा अवसर है। साथियों, कुछ महीने पहले ही भारत ने दुनिया के सबसे बड़े चुनाव कराए हैं। 60 साल बाद ऐसा हुआ जब भारत में कोई सरकार लगातार तीसरी बार वापस लौटी। इस जन विश्वास का आधार पिछले 11 साल में भारत की अनेकों उपलब्धियां हैं। मुझे विश्वास है कि आपका नया चैनल भारत की रियल स्टोरीज दुनिया तक पहुंचाएगा। बिना कोई रंग दिए आपका ग्लोबल चैनल भारत की वैसी ही तस्वीर दिखाएगा जैसा वो है। हमें मेकअप की जरूरत नहीं है। साथियों, कई साल पहले मैंने
वोकल फॉर लोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल का विजन देश के सामने रखा था। आज हम इस विजन को सच्चाई में बदलते हुए देख रहे हैं। आज हमारे यहाँ आयुष प्रोडक्ट्स और योग लोकल से ग्लोबल हो गए हैं। दुनिया में कहीं पर भी जाइए, कोई न कोई तो योग को जानने वाला मिलेगा ही। मेरे मित्र टोनी यहाँ बैठे हैं, वो तो रोज की योगा प्रैक्टिशनर है। आज भारत के सुपरफूड हमारा मखाना लोकल से ग्लोबल हो रहा है। भारत के मिलेट्स, श्री अन्न भी लोकल से ग्लोबल हो रहे हैं। और मुझे पता चला है, कल मेरे दोस्त टोनी एवर्ट दिल्ली हाट में भारतीय मिलेट्स का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया है उन्होंने, और उनको मिलेट्स की डिशेज बहुत पसंद आई और ये सुनकर मुझे ज्यादा अच्छा लगा। साथियों, मिलेट्स ही नहीं, भारत की हल्दी भी लोकल से ग्लोबल हो गई है। भारत दुनिया की 60% से ज्यादा हल्दी की सप्लाई कर रहा है। भारत की कॉफी भी लोकल से ग्लोबल हो गई है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी एक्सपोर्टर बन गया है। आज भारत के मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, भारत में बनी दवाइयां अपनी ग्लोबल पहचान बना रही हैं। और इन सबके साथ ही एक और बात हुई है, भारत कई सारे ग्लोबल इनिशिएटिव्स को लीड कर रहा है। ब्रेक का हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. Shreya Furnishing wishes you a very happy new year. Our company is the biggest wholesale showroom in India with the finest fabric catering to all segments of the market. Visit our shop 1/88 WHS Timber Market, Kirtinagar, New Delhi. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। भारतीय सेना ने बाना हिमस्खलन स्थल से और मजदूरों को सफलतापूर्वक बचाया है, जिससे निकाले गए लोगों की कुल संख्या 47 हो गई है। त्रिपुरा के सिपाहीजला जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर 28 फरवरी को हिंसक झड़प हुई, जिसमें बीएसएफ का एक जवान और एक बांग्लादेशी घुसपैठिया घायल हो गया। तेल विपणन कंपनियों ने पूरे भारत में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 6 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा की, जो शनिवार 1 मार्च से प्रभावी होगी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी, पुलिस अधिकारियों ने जानकारी साझा की। पंजाब के तरनतारन जिले में सुबह एक मकान की छत गिरने से एक परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई। दिल्ली के दरियागंज इलाके में शनिवार सुबह एक बैंक में आग लग गई। NXT कॉन्क्लेव 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के भारत पर आज पूरी दुनिया की नजर है। जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने जनपद की तीनों ही प्राधिकरणों द्वारा अधिग्रहित की गई किसानों की जमीनों को एवज में मिलने वाले आबादी भूखंडों का मुद्दा आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में उठाया। आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में बस और ट्रक में टक्कर होने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 घायल हो गए। कन्नड़ भाषा को बढ़ावा देने और इसके व्यापक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कर्नाटक सरकार ने एक निर्देश जारी किया है कि राज्य में निर्मित सभी औद्योगिक और उपभोक्ता उत्पादों को अन्य भाषाओं के साथ साथ कन्नड़ में अपने नाम और उपयोग निर्देश प्रदर्शित करने होंगे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने बालाघाट में किसान सम्मेलन का शुभारंभ कर दिव्यांगजनों को सहायता उपकरण वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने 7.26 करोड़ की लागत से निर्मित सर्व सुविधा युक्त हॉकी एस्ट्रोटर्फ का लोकार्पण कर खिलाड़ियों को शुभकामना दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अत्याधुनिक टर्फ एथलीट्स को बेहतर प्रशिक्षण देगा और प्रदेश का नाम रोशन करेगा। इस अवसर पर उन्होंने 264 करोड़ से अधिक की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और 61 करोड़ से अधिक के नए कार्यों का भूमि पूजन किया। वैसे तो हम अपने जिले को किसी माध्यम से नाम से बोले न बोले, लेकिन किसी जिले को सम्राट कहना हो तो बड़ा संकट आ जाता। लेकिन सम्राट कहने में उसका माइनिंग का जो नीचे का बेस है
मैं मान के चलता हूँ माइनिंग में पूरे प्रदेश में सर्वाधिक परमात्मा ने जिस जिले को आशीर्वाद दिया है वो बालाघाट जिला है। इसको हम अपने खनिज के आधार पर, अपनी भू संपदा के आधार पर सम्राट के नाते जानते हैं। मैग्नीज, तांबा, कोयला, पता नहीं क्या क्या है, जितने प्रकार से परमात्मा ने अपनी इस प्रकृति में प्यार लुटाया, सारी की सारी चीजें अगर किसी स्थान पे मिली है और उतने अच्छे लोग भोले भाले आनंद के साथ अपनी धुन में लगे हुए। और चिन्नौर का चावल, कौन सा चावल, क्या चिन्नौर के चावल की खुशबू और क्या आनंद है, देखना, मेरे को देना, मैं ले जाऊंगा जरूर साथ में। मैं चावल कम खाता हूँ, हम जरा गेहूं वाले क्षेत्र के हैं, लेकिन चिन्नौर का चावल हो तो गेहूं भूल जाते, इतना मजा आता है आनंद के साथ। अरे आपको भी मजा आना चाहिए, ताली वाली तो बजाओ, आपका ही माल है, हमारा थोड़ी है। आज यहाँ किसान सम्मेलन भी है, हमारे कई प्रकार के विकास के कामों का लोकार्पण, भूमि पूजन भी है, खिलाड़ियों का एस्ट्रो टर्फ का। मुझे इस बात की खुशी है, ओलंपिक में आजादी के पहले मेजर ध्यानचंद जी के समय से हॉकी के माध्यम से दुनिया में एक अलग साख हॉकी की थी, और उनके बाद भी हमारे दो एक खेल हैं जिसमें ओलंपिक में पदक किसी में मिले ना मिले, लेकिन एक हॉकी और एक कुश्ती। जोरदार अभिनंदन करो अपने खिलाड़ियों का। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब निशाना भी लगने लगा। पहले निशाने हमारे चूक जाते थे, लेकिन आजकल तो निशानेबाज भी, और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, निशानेबाज को हमारे भोपाल में खेल मंत्रालय के माध्यम से सबसे देश भर में सबसे अच्छा निशानेबाजी की स्पर्धा सिखाने के लिए शूटिंग रेंज बनाने वाला कोई स्थान अगर है तो मध्य प्रदेश है। हमें इस बात की प्रसन्नता है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार एक के बाद एक जिस प्रकार से समय चल रहा है, हमें सौगात पे सौगात मिल रही है। मध्य प्रदेश अपने बलबूते पर विकास के नए नए कीर्तिमान बना रहा है, और अब तो समय ऐसा बदला है, बालाघाट में भी बहुत उद्योग लग रहे हैं ना, बालाघाट के अंदर। और हमने यहाँ जब जबलपुर में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, पहले कोई जबलपुर, रीवा, सागर, शहडोल, नर्मदापुरम, उज्जैन, ग्वालियर, इन स्थान पर आजादी के बाद अभी तक एक बार भी उद्योगों को लगाने के लिए उतनी गंभीरता के साथ नीचे की ताकत नहीं थी। और उससे भी और एक खराब पक्ष है विक्की भाई, 2002-03 तक हमारे प्रदेश की 1956 में बना मध्य प्रदेश, लेकिन विकास दर माइनस में थी। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन आज समय बदला है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर पर आया, जोरदार अभिनंदन करें अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का। वो इंग्लैंड जिसने 250 साल तक हमको गुलाम बनाया, उस इंग्लैंड को पीछे छोड़ करके भारत आगे बढ़ा है, और आने वाले समय में 5 साल के अंदर इसकी जो ताकत बनने वाली है वो आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगभग 4थे नंबर पे पहुंच रही है। सबसे तेज गति से विकास करने वाले देशों में भारत है, और आपके आशीर्वाद से अपने प्रदेश ने भी अभी जो विकास दर का जीएसडीपी का आंकड़ा आया है उसमें 13% की ग्रोथ अगर किसी ने हासिल की है वो मध्य प्रदेश है। हमें इस बात की खुशी है, ये आपका प्रदेश है। इस प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, गरीबों की जिंदगी और अच्छी बनाने के लिए, गरीबी परमात्मा ने कोई कारण से कष्ट होंगे, लेकिन पुरुषार्थ के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, सरकार मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से एक एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव आना चाहिए। जैसे हम इस बात को करते तो हमको बिजली, पानी, सड़क, खेती के सभी प्रकार की उन्नत अवस्था, ये सारी चीजों पे देखना पड़ेगा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हम इस सारी बात देखते हैं तो मूल इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा, विकास के सारे प्रतिमान देखना पड़ेंगे। तो आज यहाँ विकास की बात भी अगर करने आया हूँ तो मुझे बताया गया है कि यहीं इसी स्थान पर लगभग विकास के मामले में हमारे पास कितने करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण हो रहे हैं, कितने 112 और पैसे कितने लग रहे हैं 312 बताओ, मैं तो आंकड़े ही भूल रहा हूँ यार, तुम भारी चक्कर कर रहे हो। जोरदार ताली बताओ। 312 नहीं कलेक्टर साहब, 326 करोड़ के हैं। मैं भी आंकड़ा लाया,
326 करोड़ 60 लाख के 117 अलग अलग काम है। जोरदार ताली बजाओ, किसको कहते हैं? ये है सरकार और काम करने का तरीका। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने आज नवा रायपुर अटल नगर में छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रियल डायलॉग कार्यक्रम में उद्यमियों को संबोधित किया और नई उद्योग नीति पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 विजन के तहत राज्य के लिए अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 तैयार किया गया है। इसी कार्यक्रम में MSME सेक्टर को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी की रैंप योजना का प्रदेश में शुभारंभ किया गया, जिससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प रखा है और उसी के अनुरूप छत्तीसगढ़ को विकसित करने के लिए भी हमने अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 तैयार किया है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री MSME को बढ़ावा देने के लिए रैंप योजना तैयार किए हैं और जिसके विषय में सुश्री अंकिता पांडे ने विस्तार से बताई है और उसका प्रेजेंटेशन भी देखे हैं। निश्चित रूप से MSME सेक्टर को इससे बहुत बढ़ावा मिलेगा और हम लोग भी इस योजना में काम करने जा रहे हैं। हमारी सरकार की प्राथमिकता सूक्ष्म, लघु और घरेलू उद्योग हैं क्योंकि इनमें आगे बढ़ने की भरपूर संभावना है। जैसा हम एक छोटा पौधा लगाते हैं इस उम्मीद के साथ कि ये आगे चलकर विशाल वृक्ष बनेगा, ऐसे ही MSME के साथ भी है और हम लोग पूरी तरह से MSME को बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित हैं और छत्तीसगढ़ में उद्योग धंधे आगे और बढ़े, इसके लिए नई उद्योग नीति वर्ष 2024-2030 लागू किए हैं, जिसके विषय में हमारे उद्योग सचिव बहुत विस्तार से बता चुके हैं और बहुत मेहनत के साथ उद्योग नीति को तैयार भी किए हैं, जिसकी सराहना देश में हो रही है। और इस नई उद्योग नीति में आप लोग विस्तार से सुन चुके हैं, हम लोग औद्योगिक पार्क भी स्थापित कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बना रहे हैं और नगरनार स्टील प्लांट के पास 118 एकड़ भूमि में नए औद्योगिक पार्क की भी स्थापना हम लोग कर रहे हैं। तो इसका लाभ आप सभी लोगों को लेने के लिए हम आमंत्रित करते हैं। न्यू दिल्ली और मुंबई में हम लोग इन्वेस्टर कनेक्ट भी कर चुके हैं, उसमें जो नई उद्योग नीति के संबंध में काफी तारीफ हुई है और 1,23,000 करोड़ के इन्वेस्ट के प्रस्ताव भी हमारी सरकार को मिल चुके हैं। इस तरह से नई उद्योग नीति के माध्यम से छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे आए, इसका प्रयास सरकार के तरफ से है। और छत्तीसगढ़ के विषय में आप सभी लोग जानते हैं कि ये छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से भरपूर है, यहाँ सरप्लस बिजली है, पानी है, उद्योग धंधा को फलने फूलने के लिए उचित वातावरण है। तो सारी बातें हो चुकी हैं। मैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते आप सब लोगों का आह्वान करना चाहूंगा कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आइए, इन्वेस्ट करिए और विकसित छत्तीसगढ़ की जो हम लोग की कल्पना है उसमें आप लोग भी सहभागी बनिए। और ये छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष में प्रवेश किया है और आप सभी लोगों को मालूम है कि 25 वर्षों में इस प्रदेश का तेजी से विकास हुआ है। शुरुआती वर्ष में यहाँ का बजट मात्र 7,000 करोड़ का था, जो आज 24 वर्षों में बढ़ के 1,50,000 करोड़ से भी ज्यादा का होने वाला है। यहाँ का GSDP 24-25 वर्षों में 20 गुना बढ़ा है। यहाँ पर औद्योगिक उत्पाद सूचकांक जो पहले 3,806 था, 23-24 में बढ़कर 77,819 करोड़ रुपया हो गया है। शुक्रवार को भारत तिब्बत चीन सीमा पर स्थित माड़ा गांव में सड़क निर्माण कार्य के दौरान भूस्खलन हो गया, जिसमें 55 मजदूर बर्फ के नीचे दब गए। घटना के एक दिन बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद चमोली के माड़ा गांव के निकट चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण किया और आपदा नियंत्रण कक्ष देहरादून में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि बचाव अभियान जारी है और BRO के 55 में से 48 श्रमिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। शेष श्रमिकों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकालने का प्रयास किया जा रहा है और 200 से अधिक लोग इस बचाव कार्य में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि बचाए गए श्रमिकों की स्थिति स्थिर है। कल प्रातःकाल अत्यधिक बर्फबारी से या हिमस्खलन से एवलांच आया था और उस एवलांच जिस स्थान पर आया वहाँ पर 55 जो श्रमिक थे वो उस समय काम कर रहे थे
और 55 में से जब खोजबीन शुरू हुई तो कल रात्रि तक देर रात्रि तक 33 लोगों को रिकवर कर लिया गया, उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया। और आज प्रातःकाल 14 लोग और सवेरे खोज लिए गए, उनको बचा लिया गया और सब मिलाकर 48 लोग अब हो गए। 48 लोगों को अभी तक टेस्ट कर लिया गया है। बाकी बचे हुए 7 लोग, उनको भी बचाने के लिए हर प्रकार की वहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। मैं भी वहीं पर अभी वहाँ से होकर आया हूँ और चुनौतीपूर्ण है क्योंकि बर्फबारी अत्यधिक हो गई है। उस क्षेत्र के 5 से ज्यादा ब्लॉकों में बिजली भी नहीं है, बिजली का संपर्क भी कट गया है, सैटेलाइट का इंटरनेट भी नहीं है, दूरभाष भी अभी नहीं हो पा रहे हैं। वहाँ पर जल्दी से जल्दी हम लोगों ने अभी यहाँ पर मीटिंग की, आपस में बात की है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर एंटीना स्थापित किया जाएगा, जिससे कि लोगों को जो है वहाँ पर उनसे आसपास के गांव से लोगों से लगातार संपर्क स्थापित हो। वो सब काम किए जा रहे हैं। 200 से अधिक लोग लगातार रेस्क्यू अभियान में अपना योगदान कर रहे हैं, बचाव में लगे हुए हैं। इसमें सेना के लोग हैं, ITBP के हैं, NDRF के हैं, BRO है, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, अग्निशमन वाले हैं, हमारी पुलिस है, खाद्य विभाग के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, वायुसेना, थल सेना, सभी उस पर अपना काम कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर भी पर्याप्त मात्रा में है। लगभग 23 के आसपास लोगों को, जो 47-48 लोग हैं, उनमें से 23 लोगों को अभी तक वहां से माड़ा से जोशीमठ लाया जा चुका है और उनको हॉस्पिटलों में भर्ती कराया गया है। कुछ लोगों की हालत थोड़ा सा ज्यादा, चूंकि रात भर ठंड के कारण से, उसके कारण से एवलांच में आसपास अपने को बचाने के समय चोट भी लगी है, लेकिन फिर भी अधिकांश लोग अभी ठीक हैं और जो बचे हुए 7 लोग हैं उनको भी जल्दी ही निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। यहाँ से भी सभी तैयारियां की गई हैं। MI हेलीकॉप्टर भी हमारे तैनात है। मौसम जैसे ही ठीक होता है, क्योंकि माड़ा का जो बड़ा वाला हेलीपैड है वो उसमें काफी ज्यादा बर्फ जमी हुई है, छोटे से ऑपरेशन किया जा रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज प्रातःकाल पूरे रेस्क्यू अभियान से लेकर पूरी घटना की जानकारी ली है और पूरे प्रदेश के बारे में भी ली है और हर संभव उन्होंने सहायता के लिए कहा है कि किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता एजेंसियों की केंद्र के स्तर पर जहां भी चाहिए वहां पर वो सहायता उपलब्ध कराएंगे। और प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी, क्योंकि ऐसे काम चल रहे हैं जहां पर हाई एल्टीट्यूड पर हमारे बहुत सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं, तो वहां पर सभी को जो है अलर्ट के लिए बता दिया गया है कि इस समय में, क्योंकि ये जो फरवरी और मार्च का ये समय होता है, इस समय एवलांच की अत्यधिक संभावनाएं होती हैं, तो उनको सबको अभी सुरक्षित स्थानों पर कर दिया जाए और जरूरत हो तो इस समय कहीं पर अगर काम रोक भी दिया जाए तो कुछ दिनों के लिए अगर रोकने की आवश्यकता है तो उसको रोक दिया जाए। जो भी ऐसे स्थान है सभी को बता दिया है। कुछ जगह पर हाँ, ये जरूर है कि जब मैं एरियल सर्वे वहां से कर रहा था तो अलकनंदा जी में बिल्कुल भी पानी का बहाव ऐसा लग रहा है कि रुक गया है बर्फ के कारण। तो उसके लिए हमारे जो ऐसे इंस्टीट्यूशन है, जो ऐसे जो आपदा के समय में या इस प्रकार की जो रिसर्च करते हैं, जैसे बालिया इंस्टीट्यूट है, अन्य इंस्टीट्यूट हैं, उनको भी वहां पर भेजेंगे, वो भी अपना एरियल सर्वे करेंगे, जिससे कि आगे जो है किसी प्रकार की कोई हानि न हो जहाँ भी ज्यादा बर्फ जमी है। और जो हमारे पर्यटक भी आए हुए हैं उनको भी जानकारी दे रहे हैं, उनके लिए भी कहा गया है कि वह भी जो है, क्योंकि इस समय मौसम इस प्रकार से अचानक खराब हुआ है, जब तक मौसम विभाग आगे की भविष्यवाणी न करे तब तक वो अपनी यात्रा थोड़ा इसके जो मौसम के अनुसार ही अपनी यात्रा का शेड्यूल बनाए। कुल मिलाकर सभी लोग बहुत युद्ध स्तर पर लगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। गृहमंत्री जी ने भी लगातार हमारे से इसकी चिंता की है। रक्षा मंत्री जी ने भी अपने सभी वायुसेना के हेलीकॉप्टर से लेकर तमाम BRO वगैरह जो भी काम कर रहे हैं सभी को यहाँ पर लगाया है। और हमारे अन्य संगठन भी, सेना के लोग पूरे रात भर उन्होंने बहुत परिश्रम किया है, बहुत प्रयास किया है और आज प्रातःकाल 14 लोगों को उसमें से तभी रेस्क्यू किया जा चुका है। तो कुल मिलाकर हमारा सबका प्रयास है और हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो 7 लोग अभी हमको नहीं मिल पाए वो भी जल्दी हमको मिल जाए। कि वहाँ पर 8 कंटेनर थे, 8 में से 5 ट्रेस हो गए हैं और जो 14 लोग प्रातःकाल मिले हैं वो भी कंटेनर के अंदर से ही मिले हैं। तो अभी 3 कंटेनरों को खोजने का काम चल रहा है और उस पर सभी एक्सपर्ट जितने प्रकार के भी होते हैं, जो और रडार के लिए भी जो है उस पर भी रडार भी वहाँ पर अपना काम करे, उसके लिए भी व्यवस्था बनाई जा रही है। तो सभी प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी हमारा प्रयास हुआ कि जो 7 लोग बचे हैं उनको भी जल्दी से जल्दी खोजा जाए। अभी तो रेस्क्यू हो रहा है तो सभी लोग जो है जिनको
क्योंकि जो निकले हैं उनमें से एक दो लोगों की थोड़ा सा गंभीर स्थिति भी है, लेकिन क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं भी तत्काल मिल रही हैं, एएमसी के लोग भी लगे हैं, हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग भी लगे हैं, सबको अस्पतालों में जल्दी से भर्ती कराया जा रहा है और हेलीकॉप्टरों के द्वारा जल्दी से जल्दी उनको रेस्क्यू अभियान पूरा करके जो है सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। जो भी दवाएं इत्यादि चाहिए वो है, ठीक है, अभी सब सुरक्षित। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम